Good morning, everyone. Today again I will start concept of string, and in my previous class I have taught you about ordinal values last, I think. Correct, beta? So today I will give you some programming part. So starting now programming, write a program. As I told you, I will give a lot of program. Write a program to enter a line of text. Write a program to enter a line of text and count total number of spaces The programming is not difficult at all, as I have explained different ways to make program. File, new, see here the program first which I have given you. You have to enter a string. So entering a string is not a problem. You just enter a string, take any variable name. Suppose I am taking s is equals to input, enter a string. Then s is equals to input. Okay. Then I write for I in s. Simple loop. As you know, it will display one character at a time if I write print I. Now I'll write if s of I, if I equals to space, then we are going to count number of spaces. C is equals to C plus 1. Define C. C is a counting variable used for counting. C is equals to 0. And then finally you come here and write print total number of spaces, that is C. Now run this program. Enter a string. Kota is an educational city of Rajasthan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 spaces are there. Okay, point is clear? Rishiraj, okay. So I am giving you the programming code, you note it down. Then we'll go for the next program. Once the concept is developed, programming is not difficult at all. Noted? Okay. So next program I am giving you here. Question write a program to enter a line of text and count total number of vowels from it, and also display it. कितने vowels हैं उन vowels को display भी करो, and also display it. So Nishal, unmute yourself. I'm asking you a question. How many vowels we have? 5. Rishiraj, how many vowels we have? Rishiraj, give reply. No answer. Nishal, Rishiraj? 5. Rishiraj and Nishal, Yes, you sir, are 5. saying 5. Now my answer is 10. Nishal, can you give me the reason? There are 10 Because vowels, not they 5. are also in uppercase and lowercase. That's true. So that's why in programming we have to be logical. That's what I am teaching you.
मैंने जो इतनी बात की उसके पीछे एक लॉजिक का डिस्कशन करना था. So we are having 10 vowels, 5 uppercase and 5 lowercase. So while you are giving the condition, you have to give 10 conditions. Or there's some other way, you make all the characters in uppercase, then you only count. तो वो एक अलग मेथड है. अभी मैं 10 कंडीशन के साथ ही बना सकता हूँ और बोला कि स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दो एक पर्टिकुलर केस में, तो फिर 5 ही कंडीशन पे काम चल जाएगा. अंडरस्टूड? So I'll make now this program. Programming, as I told you, is not difficult at all. Here I will take a string for I in S and then I write if I equals to A, 10 condition you have to give, or I equals to, or I equals to O, or I equals to U, or equals to I, or I equals to A. लाइन बड़ी हो जाए तो मैंने तरीका बता रखा है. I equals to बस करते हैं, आप समझ जाना. Then we have to write C is equals to C plus 1. Total number of vowels. So मैंने कैपिटल ए और ई लिया, बाकी स्मॉल. ठीक है, आपको 10 कंडीशन देनी है. रनिंग इट, स्पेस का चक्कर हो गया. रन मॉड्यूल, ओके. Unexpected indented, okay. Run, okay. Unexpected indented, ये कहाँ इंडेंट करूंगा इसे? इस पे तो मान नहीं रहा ये. ओके, एक मिनट. और नहीं लिखा, और आई इक्वल, छोड़ो, एक लाइन में ही कर देते हैं. वैसे लाइन को ब्रेक किया जा सकता है. टैब, रन मॉड्यूल. ओह, कोलन नहीं लिखा था. रुक जाओ, लाइन को टर्मिनेट करते हैं. कोलन नहीं लिखा था ना. ठीक है, रन मॉड्यूल. ओके, एंटर स्ट्रिंग AEDFIO स्पेस ADEO KLP. टोटल वॉवेल 6. 1 2 3 4 5 and 6. क्लियर है? Please note it down. So I'll go ahead. जल्दी से नोट करो. Okay. Next program I'm going to teach you here is write a program that asks a user for a username and code and a code. Ensure that book का ही क्वेश्चन है. Ensure that user does not use their username as part of their code. As part of their code.
मतलब जैसे अपन यूजर नेम और पासवर्ड कर देते हैं ना सेम, तो कहता है कंप्यूटर की पासवर्ड और यूजर नेम सेम नहीं होना चाहिए। ये वर्ड वाला पासवर्ड वाला या यूजर नेम वाला वर्ड पासवर्ड में नहीं आना चाहिए। होता है ना आपके साथ या नहीं होता है? ऐसा होता है या नहीं? तो जब इस तरह की, असल में आपको इतना बता दूं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कुछ बहुत कमाल नहीं है। ओनली यू हैव टू लर्न द डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड द स्ट्रक्चर्स एंड देन यू वर्क। बेसिक प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है, या जो मैं पढ़ा रहा हूँ 12 तक जितना पढ़ा दूंगा, तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, ओनली सॉफ्टवेयर में चेंज होगा या प्लेटफॉर्म चेंज होगा या उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। बेसिक लॉजिक्स एंड प्रोग्रामिंग यही रहेंगी। तो इस प्रोग्राम को करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपसे वो पूछेगा कि आप अपना यूजर नेम इंटर करो। s इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर, एंटर यूजर नेम, योर क्या लिखा है, एंटर यूजर नेम, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास पासवर्ड को p कर दें, p फॉर पासवर्ड, p इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर पासवर्ड कोड, पासवर्ड ही लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। देन इफ, देखो जैसे फॉर में आई इन एस किया था, ध्यान रखना, मैं बंद नहीं कर रहा हूं इसको ताकि आपको बात समझ में आए। उसी तरह इफ में भी कर सकते, इफ एस इन पी, अगर एस पी में होता है, यही तो होगा और क्या, प्रिंट you cannot not have user ID, you cannot have user ID in password, ठीक है। else print correct, ऐसा कुछ लिख दो, ओके एक्सेप्टेड, कुछ भी कर दो, रन। so I am running and then I am writing here my name RAZA and password I am writing Raza ABIDI. You cannot have user ID in password। अब मैंने इसको रन किया, अब मैंने लिखा RAZA और यहाँ पे लिखा कोटा राजस्थान, करेक्ट, अंडरस्टूड। ये पार्ट हटा देना, इससे कोई मतलब नहीं, यहीं तक का प्रोग्राम। प्लीज गो थ्रू दिस प्रोग्राम क्विकली। फिर बुक का ही प्रोग्राम है, हैव यू गॉट द बुक, यस और नो? निश्चल गॉट, ऋषिराज, सुमिता अरोड़ा ओनली, Smita Arora. Okay, so what I will do here, I will give you assignment, same type of question है, इसको लिख लो। Write a program that asks, अगर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। Write a program that asks a user for a username and p code, that asks a user for a username and a p code. Make sure that p code does not contain username and matches, आप कोई भी पासवर्ड कर लो, matches कोटा राज and matches कोटा राज, ओके। ये कर लेना। एक कंडीशन और लगेगी, इफ यू, जैसे मैंने कहा एस नॉट इन पी कोड, ठीक है। पहले तो
करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इफ एस नॉट इन पी कोड एंड पी कोड इज इक्वल्स टू कोटा राज, कर दूं मैं या आप कर लेंगे? निश्चल कर लोगे ना? बुक में भी दिया हुआ है, खाली एस नॉट इन पी कोड कर देना एंड पी इक्वल्स टू कोटा राज, बस उसके बाद लिख देना यस योर पासवर्ड इज एक्सेप्टेड, करेक्ट पासवर्ड, ये जो भी है लिख देना, एल्स लिख देना प्लीज ट्राई अगेन, नॉट करेक्टेड, वैलिड, नॉट वैलिड, है ना? ठीक है, सो आप इसे कर लेना। नेक्स्ट इज योर राइट अ प्रोग्राम। ये भी एक बुक में मुझे प्रोग्राम दिख रहा है, मैं कर रहा हूं। मैं अब इसको डिलीट कर दूं? क्या जरूरत है मुझे प्रोग्राम, तो मैं फिर से लिख लेता हूं। उनको नोट्स की जरूरत पड़ती है जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती, प्रोग्रामिंग आती है तो फिर आपको क्या टेंशन है, कभी भी लिखो। सो आई एम राइटिंग हियर, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। अभी मैंने एक पैटर्न बताया, इसके बाद मैं लूपिंग में और आगे बताऊंगा। ये पैटर्न ले लो, स्टार, बुक में शायद हैश दिया है, this type of pyramid type of pattern, that is right angle pyramid, no? So what we have to do, we can use concatenation operator. Suppose I will write here a is equals to asterisk, and then for I in range 5 times I have to execute, and then I will write s is equals to blank plus asterisk, and I will write print, ध्यान देना मैं समझा देता हूँ, एस, एस्ट्रिक की जगह आप ए भी कर सकते और डायरेक्टली एस्ट्रिक भी लिख सकते थे। रन इट, बस इतना सा प्रोग्राम है। रुको, गड़बड़ हो गई ना? एस प्लस ए को इसने एक करके दो जोड़ा, फिर देते हैं ओके, एस इज इक्वल्स टू, ये एस लिखना चाहिए था मुझे, मैंने यही गलत किया ना, ये ए लिखना चाहिए था, ये ए में चेंज होना चाहिए, देखना। ओ एस कहां से आ गया? एस, वेट, एस कहां से गड़बड़ है कुछ? हमारा जो यहाँ पर एस था, अगर एस लिया था, एस इज इक्वल्स टू, ये ब्लैंक क्यों दे रहा हूँ? एस की इनिशियल वैल्यू मुझे तो कुछ लेनी पड़ेगी ना। एस इज इक्वल्स टू प्लस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में मैंने ये दे दिया, एस को इनिशियल वैल्यू ब्लैंक यहाँ पे नहीं मान के, तो अच्छा ये बार बार यहाँ ब्लैंक ले लेगा इसलिए, प्लस इक्वल्स टू ये, जस्ट अ मिनट, ओके आ गया। ना क्या हुआ है ध्यान दो, सबसे पहले ए की वैल्यू एस्ट्रिक ली, एस की वैल्यू कुछ भी नहीं ली, बट स्ट्रिंग डिफाइन किया है विद नो वैल्यू इन स्पेस। मैंने एस में ए को ऐड किया, पहले एक एस्ट्रिक आया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, एक्चुअली ये हुआ है एस इज इक्वल्स टू दिस प्लस एस्ट्रिक, तो इज इक्वल्स टू एस्ट्रिक हो गया। जब अगली बार ये चला तो ये एस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये एरर से मत घबराओ, एक एस्ट्रिक इसके पास पहले था, ऐसे प्लस एक एस्ट्रिक और हो गया, तो इज इक्वल्स टू कॉन्केटेनेशन हुआ है, डबल कोट्स मैंने लिखा नहीं, समझ जाना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एस एवरी टाइम इज इंक्रीजिंग, कॉन्केटेनेशन हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। एस इनिशियली आप सिंपली ब्लैंक कोट्स में छोड़ देना एंड देन स्टार्ट वर्किंग, सो इट दिस पैटर्न विल कम। अब इसको मैं और लॉजिक चेंज करके भी बता देता हूं कि
पहले आप इसे नोट कर लो, फिर इसका लॉजिक चेंज करते हैं। नेस्टेड लूप से भी बता सकते हैं। होपफुली नोटेड। एक मिनट रुको, अंडू, अगर नहीं है तो नोट कर लो लास्ट फ्यू सेकेंड्स। फाइल, okay, so what I am doing here, for I in range 1 comma 6 colon for j in range, okay, वो पहला वाला आसान था, 1 comma I plus 1, ठीक, and then print asterisk end is equals to, and then another print here। थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है मगर इससे आपके रास्ते खुल जाएंगे आगे के। ओके, so the see the result is coming same here, so what it is doing, just पहले समझो इसको, j की वैल्यू i की वैल्यू 1 हुई, j की वैल्यू 1 से 1 एक बार, 1 से 2 मतलब 1 से 1 एक बार एग्जीक्यूट हुआ, एक बार एस्ट्रिक हुआ। जब j की वैल्यू कंप्लीट हो गई, then it will go to take the next value of i 2, then 1 comma 3 हो जाएगा, 2 plus 1 3, but 2 time loop will execute, 2 asterisk will come, then i की वैल्यू, understood or not, i की वैल्यू 3, then 1 to 4 मतलब 3 time and so on। Rishiraj, do you have any problem? This is the nested loop based program, same programming we have। थोड़ा सा अगर दिक्कत है तो मैं समझा दूंगा फिर से। It means i is equals to 1, तो j की वैल्यू 1 से 2 मतलब 1 time asterisk हुआ, understood, in one line, then I is equals to 2, so j is equals to 1 से 3, that means asterisk asterisk 2 times हुआ, this way। okay, explanation is clear। मैं इसको रिमार्क्स में ही डाल दूं ताकि आपके पास जब आप कमेंट्स लो, आई मीन स्क्रीनशॉट लो तो आना चाहिए। दिस वे इट विल कीप ऑन डिस्प्लेइंग। सो अब आपके पास एक ऑप्शन और आ रहा है, मैं बना रहा हूं, आप इस पे ध्यान दीजिए। प्रिंट द फॉलोइंग फॉर्मेट, 5 asterisk, this asterisk, 3 asterisk, 2 asterisk and asterisk, ulta, make it। Then I'll give you one more program, write a program to print 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, depends, 6 7 8 9 करना चाहो तो। then अगर another program I'm giving 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम है भाई। एक चाहो तो एक साथ पिरामिड ही बना सकते हैं 2 बार लूप चला के। इट इज लुकिंग, दिस पैटर्न इज आल्सो लुकिंग वेरी नाइस, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस हो गए, यू हैव टू डिस्प्ले दिस 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 दिस। अब अगर हम नेस्टेड लूप वाला कॉन्सेप्ट पकड़ के रखते हैं तो आप देखिए कितना आसान हो जाएगा प्रोग्रामिंग। आई विल टेक द नंबर 1, आई हैव टू प्रिंट 1 1 2 1 2 3, so instead of asterisk, what I will do, I will simply print here j। now see the result, result is coming 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5। if you want to give some space, then you can give space also, it will display space also, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, understood। so what it is showing, what it is doing, the same, instead of asterisk it is printing here 1, then instead of 2 asterisk it is printing 1 2 and so on, understood or not? ओके, रिवर्स वाला मैं बाद में पढ़ाऊंगा क्योंकि क्लास का टाइम इज ओवर नाउ, नेक्स्ट क्लास आई हैव टू टेक, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। स्ट्रिंग 1 or 2 more classes, और नेक्स्ट वीक जब मैं 3, remember Monday and Tuesday we are not having class, okay, I have some function at home, at my home,
and that's why I will not come. So Monday, Tuesday will not have the class. Got it? So please don't come. Okay, bye. We'll meet in the next class. Meantime, I have given you the program. बेटा ये जो बाकी के प्रोग्राम है इनमें सिर्फ लूपिंग चेंज होगी. समझ में आ रही बात? जैसे मुझे 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है तो इसका मतलब है कि इसको मुझे यहाँ 5 करना है और यहाँ पे 0 करना है और यहाँ पे -1 करना है. अंडरस्टूड और नॉट? देन इट विल प्रिंट 1,5. दैट मीन्स इट विल फर्स्ट प्रिंट 5 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. मैं करके दिखाई दूं, मैंने बनाई दिया है, देख लो. तो ऐसे ही सारे पैटर्न्स आप बना के देख लो. 1 2 3 4 5 हो गया. सिर्फ दैट्स व्हाई आई वाज टीचिंग यू नेस्टेड लूप. इसमें करने से प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाती है. अंडरस्टूड और नॉट? ये लास्ट भी ले लो. ठीक है, बाकी जो मैंने दिए हैं शायद ये एक एस्ट्रिक वाला ही तो बचा है, बाकी तो कर ही दिए मैंने. ये वाले में भी सिर्फ आपको यहाँ पे एस्ट्रिक लगाना है, अपने आप आ जाएगा. सो दिस मच प्रोग्रामिंग इज कंप्लीटेड. Please note down all this program in your copy because in examination I am going to give all this program which I am teaching you here online. Take care, bye. We'll meet in the next class.